we will now we are ready to start, and if as Brother Zach and Sister Annie walk into the hall, there will be a music played, and let us clap along with the music. Yeah, it's a familiar choruses that we're going to play, and we want to clap and welcome them. And as they walk down the aisle, we also want to greet them. So let's use this opportunity as the music plays and as Brother Zach and Sister Annie come. और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जैसे ही भाई जैक और बहन एनी प्रवेश करते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और तालियां बजाते हुए हर्ष के साथ भाई जैक और बहन एनी का आप अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करें। और इस समय कुछ धुन बजाए जाएंगे जो कि बहुत सुप्रसिद्ध कोरसेस हैं, और उनके साथ हम तालियां बजाते हुए भाई और बहन का स्वागत करेंगे। All rise up, please. So, brothers and sisters, please give a warm welcome to the couple of the occasion, Brother Zach and Sister Annie. As they come in, we want to give them a warm welcome. We want to point out one thing at this point. और इस समय हम एक बात की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। 50 years of every marriage is a milestone that must be celebrated. और किसी भी विवाह की 50वीं वर्षगांठ एक ऐसी मील का पत्थर है जिसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। 50 years of every marriage is a milestone worthy of celebration. और किसी भी विवाह की 50वीं वर्षगांठ एक ऐसी मील का पत्थर है जो उसे उत्साह के साथ मनाने के योग्य है। 50 years of a happy marriage, and where all your children, sons and daughters in love are following the Lord, is an amazing and fabulous event that we have to celebrate. और 50 वर्षों से जैसे आपके जो आत्मिक बेटे और बेटियां हैं जिस रीति से प्रभु के पीछे धुन लगा करके चल रहे हैं, तो यह वास्तव में आज का दिन ऐसा दिन है जिसे बड़े ही उत्साह के साथ हमें मनाना चाहिए। One minute. और एक मिनट ठहर जाइए। But 50 years of a faithful walk where you've inspired so many here in Bangalore and to the very ends of the earth, you've inspired us to be devoted to Christ, to wholeheartedly follow Christ. You've inspired us by your example, and we've slowly learned to follow. That is worthy of a standing ovation, brother and sister. और आपका जो 50 वर्षों से जिस रीति से आप प्रभु के साथ चले, और हम लोगों को जो बैंगलोर की कलीसिया में और विश्व की अनेक कलीसियाओं के लोगों को जिस रीति से आपने अपने आचरण के द्वारा हमारे सामने एक नमूना दिया, हमें प्रोत्साहित किया, और यह बात तो वास्तविकता में आनंद और उत्सव मनाने के योग्य है। और मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर के भाई के लिए तालियां बजाएं। In the best wedding tradition, we want to invite the happy couple to please cut the cake. और हम वैवाहिक दंपत्ति को इनवाइट करेंगे कि वे आकर के केक काटें। You have to feed each other. That is how it is. और आपको एक दूसरे को खिलाना भी है। That's how it's done. और इसी रीति से यह किया जाता है।
Thank you so much, Zach, Sister Annie. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जैक और बहन एनी। Brother Ian and Sister Vicky, we want to welcome you now to help us to give a small token of our immense gratitude to Brother Zach and to Sister Annie. और भाई इयन और उनकी धर्मपत्नी बहन विकी को हम आमंत्रित करेंगे कि वे हमारी ओर से हमारे आभार के प्रति उन्हें एक प्रेम की भेंट प्रस्तुत करें। If you can come to the stage, यदि आप स्टेज में आ सके तो। we have a small token to Brother Zach, which Brother Ian will now give. और एक छोटी सी भेंट है भाई जैक के लिए जिसे भाई इयन अभी उन्हें देंगे। And a small token to Sister Annie, which Sister Vicky will give. So, thank you very much, Brother Zach and Sister Annie. We have a special program for you. और भाई जैक और बहन एनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पास आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम है। We want to point out one thing before we start our special program. और इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को आरंभ करें, हम एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। We want to talk a little bit about the banners that we have up here. और वो बैनर जो आज हमने यहाँ पे लगाए हैं ऊपर की ओर, हम उनके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। So these banners are representative of a prophecy that Brother Bhakt Singh gave at Brother Zach and Sister Annie's wedding. और यह जो बैनर हैं, यह उन प्रतिज्ञाओं ये प्रतिज्ञाओं के बैनर हैं जिन्हें भविष्यवाणी के तौर पे भाई भक्त सिंह ने भाई जैक पूनन एवं बहन एनी पूनन के विवाह के दिन कहे थे। And that is from Genesis 12 verse 2. और लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन से, 1, 2 and 3. पहला, दूसरा और तीसरा वचन। And the verses there is, the Lord has said, I will bless you, and in you all the families to the very ends of the earth will be blessed. And certainly we have been blessed. और वह वचन कहता है, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। You know, that promise was given to Abraham, I think when he was 75. और मैं मानता हूं कि यह जो प्रतिज्ञा है, आशीष के वचन, यह अब्राहम को तब दिए गए जब वह 75 वर्ष की आयु का था। And this banner here represents Abraham, when he was 99. You know, you see the stars in the sky. By the time he was 99, Abraham was still called Abraham, but God had such an encouraging word to him. And God said, look at the heavens and count the stars. और यहाँ पे जो प्रतिज्ञा दी गई है, यह अब्राहम को परमेश्वर ने तब दी थी जब वो 99 वर्ष की आयु का था, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आसमान की ओर नजर उठा करके देख और आसमान के तारों को देख। If you're even able to, so shall your descendants be. और यदि तू उन तारों को गिन भी सके तो उन्हीं के समान तेरे वंश के लोग होंगे। And Brother Zach, we here are the spiritual descendants of you being so faithful all these years to the promises that God has given to you. और भाई जैक, हम सब तो आपके आत्मिक वंश के ही लोग हैं, क्योंकि आप इतने वर्षों तक परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं के प्रति जो आपको मिली थी, आप विश्वास योग्यता से चलते आए हैं। And we are so grateful to that. Thank you, Brother Zach. और हम इसके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। धन्यवाद भाई जैक। Amen. And the promise was that I will bless you and make you a blessing to all the nations of the world. And your spiritual descendants will be as the sands of the seashore. And we can say that that has also happened in Brother Zach's life. And thank you once again, Brother Zach, for that. और जो प्रतिज्ञा थी वह यह थी कि मैं तुझे आशीष करूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तुझ में पृथ्वी के सब कुल आशीषित होंगे। और इस बात को भी हम भाई जैक के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। So I was saying we have a special program for you, Brother Zach. So in order for you to watch the program, you will need to take the seats. Okay. So Brother Zach and Sister Annie, we would like to welcome you again on the stage. और भाई जैक और बहन एनी, हम आपका फिर से स्टेज में स्वागत करना चाहेंगे। Brother Zach and Sister Annie, this is the time your family would like to hear from you.
और भाई जैक और सिस्टर एनी, यह अब वह समय है जब आपका परिवार आपके माध्यम से सुनना चाहता है। Feel free, either sitting up or standing, either way as you feel free. और जैसे भी आपको अच्छा लगे, या तो बैठे हुए या तो खड़े होकर के, परंतु आप हमसे बांटिए। We would love to hear from you, whatever's your heart. और जो भी बातें आपके हृदय में हैं, उन बातों को हम सहर्ष सुनना चाहेंगे। Dear brothers and sisters, I want to thank you all for your love. This day has been one of the happiest days of my life. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आप सबों के लिए, और आज का जो दिन है वह मेरे जीवन का एक बहुत ही खुशनुमा दिन है। And sitting here and listening to all the beautiful songs and getting a taste of such great love, I'm really so thankful. I'm humbled. I don't deserve any of the words that were spoken, but I want to give all the glory to God. और मेरा हृदय बहुत ही आनंद से भर गया उन गीतों को सुन करके। आपने यह जो हमारे लिए जो कार्यक्रम किया, इसे देख करके मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इन में से किसी भी चीजों के मैं योग्य नहीं हूं, परंतु सारी महिमा मैं प्रभु को ही देना चाहती हूं। And I want to, in it I can see your great love for us. और इन सारे चीजों के पीछे मैं आप लोगों का जो बड़ा प्रेम है हमारे लिए, उसे मैं देख पा रही हूं। And that fills our hearts with joy. और यह हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। Thank you so much for taking all the trouble preparing these songs and this wonderful program, and seeing you sitting there has given us so much joy. और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कष्ट उठा करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सुंदर गीतों को प्रस्तुत किया, और वहां पे नीचे बैठ करके इन कार्यक्रमों को देखने से मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। 50 years has been a long time in one sense, but looking back it's been such a short time. और 50 साल कहा जाए तो एक तरीके से तो बहुत लंबी अवधि होती है, परंतु जब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही थोड़ा सा समय था ये। I cannot believe that it almost looks like 50 days have gone by. और मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे केवल 50 वर्ष ही बीते हैं। But God has done so much for us, and I'm really thankful to the Lord for. परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और मैं इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। All these years. और इन सारे वर्षों में जो भलाई परमेश्वर ने की, उन सब का मैं धन्यवाद देती हूँ। For keeping us in health, for giving us a church family, a wonderful family, our children and grandchildren, and all the blessings, so many which I cannot number. और हमें इतने अच्छे कलीसिया दी, हमें बच्चे दिए, नाती पोते दिए, और वे असंख्य आशीषें जिसे परमेश्वर ने हमें दी, जिसे मैं गिन भी नहीं सकती। उन तमाम चीजों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहती हूँ। When I was in college, I used to have a picture on my table. और जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे टेबल के ऊपर एक तस्वीर हुआ करती थी। And that picture I had cut out from one of the missionary magazines. और उस चित्र को, उस जो पिक्चर था, उसे मैंने एक मिशनरी पत्रिका से काट करके निकाला था। That picture showed a bullock standing in front of an altar. On one side was the altar, and on the other side was a plow. और वह जो चित्र था वह एक बैल का चित्र था, और उस बैल के एक तरफ तो वेदी थी और दूसरे तरफ हल था। I think it was a motto of some missionary organization. और जैसा मैं मानती हूँ ये किसी मिशनरी संस्था का लोगो था। But I saw that and I was so blessed by that I cut it out and kept it on my table. परंतु उसे देखने के बाद मुझे इतना आशीष मिला उसे देख करके कि मैंने उस चित्र को काट करके अपने टेबल में लगा लिया। And underneath were these words, ready for the sacrifice of a service. और उसके नीचे ये शब्द लिखे थे, तैयार के लिए, बलिदान के लिए तैयार या सेवा के लिए तैयार। And I said, Lord, I want to be like that. और मैंने कहा, प्रभु जी मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ। I want to be ready for sacrifice or for service. मैं या तो बलिदान के लिए या तो सेवा के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए मैं तैयार होना चाहती हूँ। And looking at that poor animal standing there, I used to feel very sorry that this poor animal is waiting for whichever. But then the Lord opened my eyes to see, in my spiritual eyes, to see the Lamb of God
slain before the foundation of the world. And he came like that, and that gave me so much encouragement. और जब मैं इस चित्र को देखती थी तो मैं उस जानवर के लिए बहुत ही तरस से भर जाती थी। कहती थी कि बेचारा जानवर या तो एक तरफ या वेदी के लिए तैयार है या तो एक तरफ या हल के लिए तैयार है। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब उसने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मेरे हृदय में प्रकाश दिया, तब मैं जान पाई कि यह उस मेमने का चित्र है जो हमारे पापों के लिए वध होने को इस संसार में आया था। And that challenged me. और इस बात ने मेरे सामने एक चुनौती को रखा। And later I found there was standing next to me another person with the same vision, ready for sacrifice. और कुछ समय के बाद मैंने पाया कि एक और व्यक्ति जो मेरे बाजू में इसी दर्शन को लेकर के खड़ा हुआ है Offer service. और वह व्यक्ति वह भी या तो बलिदान के लिए या तो सेवा के लिए तैयार है। And that is my dear husband, God brought into my life, and I have not been lonely since then. और वह मेरे प्रिय पति हैं जिसे प्रभु ने मेरे जीवन में लेकर के आए, और उस दिन से मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूँ। I know that we both have the same goal, and that time I was feeling sorry for that poor animal. Now I feel so happy that there is somebody with me. और उस समय तो मुझे उस जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा तरस और दया आई थी, परंतु आज मैं खुश होती हूँ क्योंकि मेरे समान भी ऐसा एक व्यक्ति है। And we can go this way, same way together. और हम इस रास्ते में दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं And yield our lives to the Lord. और अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं। The Lord has really enriched our marriage because He opened our eyes to see the truths of the new covenant. और परमेश्वर ने वास्तविकता में हमारे विवाह में बहुतायत की आशीष को उंडेला है, क्योंकि उसने हमारी आंखों को खोला कि हम नई वाचा को देख पाएं। I can say that has changed my life tremendously. और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस बात ने हमारे जीवन को बहुत ही बड़े रीति से परिवर्तित किया है। Marriage has changed my life. I would have been a completely different person if I hadn't been married. अर्थात विवाह ने मेरे जीवन को बहुत ही अलग रीति से परिवर्तित कर दिया। यदि मेरा विवाह नहीं होता तो शायद मैं कुछ एक और ही प्रकार की व्यक्ति रहती। So I praise and thank God. इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। God made me some of the changes. I cannot mention all, but some of the changes a few of those which I want to mention is और कुछ एक बदलाव जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाए, मैं सारों को तो नहीं परंतु उनमें से कुछ बदलावों को आपके सामने कहना God चाहूंगी। taught me to be a sharing person. परमेश्वर ने मुझे एक सिखाया कि मुझे एक बांटने वाला व्यक्ति बनना है। To share. Before I used to think of myself. I had to make my own decisions. I had to plan my life, plan my days, my time, everything. और उसके पहले मैं अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेती थी। मैं सोचती थी कि मुझे अपने जीवन का ख्याल रखना है, मुझे अपने समय को सुव्यवस्थित करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। But now God has given me someone with whom I can share. परंतु अब प्रभु ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिया है जिसके साथ मैं बांट सकती हूँ। I share everything. और मैं उससे हर चीज बांटती हूँ। Share my thoughts. मैं अपने विचार उससे बांटती Share हूँ। my fears. मैं अपने भय उसके साथ बांटती हूँ। Share my desires. मैं अपनी लालसाओं को बांटती हूँ And pray with Him. और उसके साथ प्रार्थना करती I हूँ। praise and thank God that marriage has been a sharing for me. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यह जो विवाह रहा यह मेरे लिए एक बांटने का कारण बना। It has also been caring for me. और यह मेरे लिए एक केयरिंग का भी कारण बना, ख्याल रखने का। A life of caring. Where I have somebody I can care for. And और एक ऐसा जीवन जहाँ पे मैं किसी का ख्याल रख सकूं, someone cares for me. और एक ऐसा जीवन जहाँ पे कोई मेरा ख्याल रखता है। I praise and thank God for the wonderful husband He has given me who cares and takes care of me. मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस अद्भुत पति के लिए जिसे उसने मुझे दिया, जो मेरा ख्याल रखते हैं। That I don't have to think of the future with any fear, but I have that confidence that God is with us and He's taking care of us. कि मुझे भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं होती और मुझे इस बात का पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर हमारे साथ है। And God has changed and shown me that I should not, like in everyday life, not be a person who will put the blame on others, but be slow in blaming anybody. और परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो किसी के ऊपर दोष न लगाए परंतु दोष को ग्रहण करे। But be quick to judge myself.
परंतु जल्दी से जल्दी अपने आप को जांच सके। If something goes wrong, not blame any, judge others, but see in which way I can change or do something better. और जब कोई चीज बिगड़ जाती है, गलत हो जाती, तो दूसरों का न्याय करने के बदले जल्दी से जल्दी अपने अंदर में झांक करके अवलोकन कर सकूं कि मैं किस रीति से बेहतर हो सकती हूं। And like that, God has changed me in so many ways. I praise and thank God. और इस रीति से परमेश्वर ने मुझे अनेक तरीकों से बदला और मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। And I praise and thank God for the church. मैं कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ Thank God for all of you. और आप सबों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। Thank God for the children. And may God bless you all for this wonderful time you have given us. और अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करती हूँ और प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करे, यह सुंदर अवसर जो आपने हमें प्रदान किया। God bless you. प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। I have many times thought of this verse in Proverbs 4:18 as the path God has planned for every one of His children. और मैंने अनेक बार इस वचन को, जो नीति वचन की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 18वें वचन में लिखा है, इसे इस रीति से देखा है कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसे परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ठहराया है। Single or married, it says the path of the righteous चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है धर्मियों का जो पथ है, धर्मियों का जो मार्ग है, is like the sunrise और वह उस सूरज के समान है जो उदय होता है, then it shines brighter and brighter until the full day. और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन उभरते जाता है, वैसे वैसे सूरज का प्रकाश और अधिक बढ़ता है। I pictured that many times. The sun never backslides for 1 second. और मैं हमेशा इसका चित्रण ऐसा करता हूं कि सूर्य 1 सेकंड के भी लिए भी बैकस्लाइड नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है। It's always going, it's not going too fast, it's going so slowly और वह बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ता है, परंतु धीरे धीरे आगे बढ़ता है that you can't even see it move. कि आप उसे बढ़ता हुआ भी आगे नहीं देख पाते हैं। And yet, at dawn, when the sun is just risen, it's all so dim, not so clear. It gets brighter and brighter and brighter. और जैसे ही सूर्य उदय होने के साथ सुबह होती है, तो वह एक ऐसा समय रहता है जब चारों तरफ उतना प्रकाश नहीं रहता, हल्का सा अंधेरा ही रहता है, परंतु हम देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उभरता जाता है, उठता जाता है, उगता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश और अधिक बढ़ जाता है। I thought of that in relation to my personal life, और मैंने इसे अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ मिला करके सोचा, family life, अपने bringing up children. अपने पारिवारिक जीवन के साथ मिला करके सोचा, जहां पे मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना पड़ा। Nothing is perfect on day one. और पहले दिन से कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है। I say that for the encouragement of everybody here. और मैं यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के प्रोत्साहन के लिए ऐसा कहता हूँ। It's a slow progress to perfection. और यह जो प्रगति है वह धीरे धीरे होती है सिद्धता की ओर। And that's why we have on our pulpit, let us press on to perfection. और इसीलिए तो हमने अपने पुलपिट के ऊपर लिख करके लगाया है कि आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। It's little by little by little by little. और The growth is hardly visible. और आप धीरे 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 करके बढ़ते हैं और आपकी जो बढ़त है वो बड़े ही मुश्किल से कोई देख पाता है। But we find over a period of time, it becomes better and better. परंतु कुछ समय बीतने के बाद आप पाएंगे कि ये चीजें और बेहतर होते चले जाती हैं। And that's why whenever I give a testimony, I always want to tell people that I was not like this when I started my Christian life. और इसलिए जब कभी मैं अपनी गवाही देता हूं तो मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपने मसीही जीवन को शुरुआत किया था तो मैं ऐसा नहीं था। Our marriage was not like it is today when we started our married life. और जब हमने अपने वैवाहिक जीवन को शुरू किया था उस समय हमारा वैवाहिक जीवन वैसा नहीं था जैसा वह आज है। I was speaking once in another country where some years ago, where different families were giving their testimony and how everybody is saying how wonderful it was in their life. And so I got up and said,
और विदेश में मैं एक ऐसी ही सभा में था जहाँ पे हर कोई खड़े होकर के अपनी गवाही दे रहा था उनके जीवन के विषय में, उनके पारिवारिक जीवन के विषय में, और मैं भी फिर खड़ा होकर के इस प्रकार से मैंने कहा, I was a sinner when I got married. और मैंने कहा कि जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं एक पापी मनुष्य था, It means I had no victory over sin in my life. और उसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन में मैंने पापों के ऊपर विजय को हासिल नहीं किया था, I used to get angry, discouraged. और मैं क्रोध करता था और मैं निराश भी हो जाता था, Many things. And I think in my heart, even though outwardly I did not love money, I think I did love like all human beings. और मैं यह मानता हूं कि बाहरी तौर पे तो मैं पैसे से प्रेम नहीं करता था, परंतु अपने हृदय में जैसे कि हर मनुष्य पैसे से प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता था। But over a period of time, as I, particularly after God filled me with the Holy Spirit and opened my eyes to the new covenant, many things began to change. Again, not all of a sudden, slowly. और जैसे जैसे समय बीतता गया और जब परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और नई वाचा के प्रति मेरी आंखों को खोला, पवित्र आत्मा से मुझे भरा, तब चीजें बदलने लगी। और मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, ये चीजें एकाएक नहीं बदली, परंतु धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गई, So step by step, कदम दर कदम बदलते चले गई, where I began to be delivered from discouragement, so that I can honestly say today that I can't even remember how many years ago I was last discouraged. और धीरे धीरे मैं निराशा के ऊपर भी जय पाने लगा। और आज मैं कह सकता हूं कि मुझे याद भी नहीं है कि कितने वर्ष पहले आखिरी बार मैं निराश हुआ था। I got victory over anger. I can't even remember how many years ago I got angry with my wife. It's gone. और मैंने क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया, और अब मैं याद भी नहीं कर सकता हूं कि कितने साल पहले मैंने आखिरी बार अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध किया था, Or upset about something. या किसी चीज को लेकर के मैं दुखित हुआ था। All I did was what we have taught in the church. Judge ourselves. और मैंने केवल इतना ही किया था जो हमें कलीसिया में सिखाया गया कि हम अपने आप को जांचें। I used to have this little verse I printed out and kept in front of my table. और मैंने यह छोटा पद अपने टेबल के सामने प्रिंट करके लगाया था। Happiest people in the world are those who judge themselves constantly. और पृथ्वी में सबसे खुशहाल लोग वे होते हैं जो निरंतर अपने आप का न्याय करते हैं, अपने आप को जांचते रहते हैं, And never judge others. और कभी भी दूसरों का न्याय नहीं करते हैं, दूसरों को नहीं जांचते हैं। But it's important for all young people who are considering marriage to think of the foundation. The type of wife or husband you choose is very important because और उन हर जवान लोगों के लिए जो विवाह करने के विषय में सोच विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे नींव पे ध्यान दें, क्योंकि जिस प्रकार के पति या पत्नी का आप चुनाव करते हैं, if they don't have those values in the beginning, यदि उनके जीवन में शुरुआत से ही वे मूल्य नहीं होते हैं, you're not so sure whether they'll acquire those values later on. तो आप इस बात के लिए पूरी रीति से निश्चित नहीं हो सकते कि आगे चल करके ये लोग उन मूल्यों को अपने जीवन में सीख लेंगे या अपना लेंगे। So I was so determined that because the Lord had called me to quit my job, and I had given up everything. In fact, I emptied my entire life savings and gave it away for God's work and left my job with zero in my bank account. और जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो मैंने अपने पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, सारी अपनी जो मैंने जमा पूंजी थी उसे प्रभु के कार्य के लिए दे दी। और जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने 0 रुपए के साथ शुरुआत किया था। I said, Lord, I don't want to marry someone who doesn't have the same vision. और मैंने कहा, प्रभु जी, मैं एक ऐसी लड़की से कभी भी विवाह करना नहीं चाहूंगा जिसके पास वही दर्शन ना हो जो मेरे पास है, Who wants comfort and money and comfortable house and all sort of gadgets and और जिसे एक बड़ा घर चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, सब प्रकार के गैजेट्स चाहिए। all types of things. I don't want to make a mistake. I'd rather be single in that case. और मैंने कहा, प्रभु जी, ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा, मैं विवाह नहीं करना चाहूंगा। And serve you. I don't want to, make a blunder here. I was so scared of marrying the wrong person. और उन दिनों में मैं गलत व्यक्ति से विवाह करने के बहुत ही ज्यादा भय में रहा करता था। That I
I said, Lord, if by some mistake I say yes to some foolish girl, please send an earthquake on the day of the wedding or something so that it will be cancelled. और मैंने प्रभु के सामने यह प्रार्थना की थी कि यदि किसी मूर्खता में आकर के मैं एक ऐसी लड़की को विवाह के लिए हाँ कर दूं जो आपकी इच्छा में नहीं है, तो कृपा करके आप मेरे विवाह के दिन एक भूकंप को भेज दीजिए और मेरे विवाह को उस दिन आप रोक दीजिए। I really prayed that because I was so scared. और मैंने वास्तविकता में यह प्रार्थना किया था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डरता था। I knew God had called me and I didn't want to ever miss that calling. और मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई की बुलाहट दी और मैं कभी भी उस बुलाहट से दूर नहीं होना चाहता था। In marriage, because I've seen so many people और कभी भी विवाह के माध्यम से मैं उस विवाह से, उस बुलाहट से दूर नहीं होना चाहता था। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी था। they're so zealous when they're single and then they get married and it all cools off. और ये वे लोग थे जो अविवाहित दिनों में परमेश्वर के लिए जोश से भरे रहते थे, परंतु विवाह के बाद वे ठंडे से पड़ जाते थे, उनकी सारी जोश चला जाता था। And so, you know how Elijah, when he said, I'm going to call down fire from heaven. If you want fire from heaven, if you want to help God a little, you can put a few matchsticks on the altar. But he didn't do that. और हम एलिय्याह के विषय में यह सुनते हैं, यदि आप परमेश्वर को वेदी में अग्नि लगाने में कुछ सहायता कर सकते हो तो आप अपने तरफ से यह कर सकते हो कि आप कुछ माचिस की काड़ियां वेदी में रख दो, परंतु हम यह देखते हैं कि एलिय्याह ने ऐसा कभी नहीं किया था। He said, I want to prove this is really from heaven. और एलिय्याह ने कहा था कि मैं वास्तविकता में लोगों के सामने यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि यह जो अग्नि है यह स्वर्ग से उतरी हुई अग्नि है। So he said, get a few buckets of water. और इसलिए एलिय्याह ने कहा कि कुछ बाल्टी पानी भर के ले आओ। They poured and poured and poured and poured and all that water. Then when the fire came, it was really from heaven. और उन्होंने पानी के ऊपर पानी डाल दिया, उस वेदी के ऊपर पानी डालते ही चले गए और तब जो अग्नि उतरी वो वास्तविकता में स्वर्ग से उतरी हुई अग्नि थी। So I felt that when I consider marriage, I must present to my wife, to the girl considering my marriage, the most difficult picture of the type of person I'll be or the type of work I'm going to do. You know, pour as much water as possible. और इसलिए जब मैं विवाह के विषय में सोच रहा था तो मैंने कहा कि जिस भी लड़की से मेरे विवाह की बातचीत चलेगी मैं उसके सामने अपना एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करूंगा जो लगे कि ये बहुत ही कठोर व्यक्ति है। मैं चाहता था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं उस वेदी के ऊपर पानी को डालता ही रहूं, So that fire comes, it'll be from heaven. ताकि जब अग्नि उतरे तो वो स्वर्ग से उतरने वाली ही अग्नि रहे। Some things I told her truthfully. और कुछ एक बातें मैंने उनसे सच सच कही, I don't have any money. अर्थात कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, My bank account is zero. I gave it all away. मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो चुका है, मैंने सारा पैसा दान कर दिया है, I have no job. मेरे पास कोई नौकरी नहीं है I'm not going to join any Christian organization. और मैं किसी भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मसीही संस्था में मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगा I will not get a salary. और मैं कभी भी अपने लिए तनख्वाह नहीं लूंगा I will not. And also, I will not use my gift to go to rich churches. I will go to the villages. और इसके अलावा मैं कभी भी अपने वरदानों को इस्तेमाल नहीं करूंगा कि बड़े बड़े कलीसिया में जाऊं, पैसे वाली कलीसिया में जाऊं, परंतु इसके विपरीत मैं गांव में जाना पसंद करूंगा I will work among students और मैं विद्यार्थियों के बीच में कार्य करूंगा who cannot give me many gifts. जो मुझे बहुत उपहार नहीं दे सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मैं कार्य करूंगा। And I don't know where, at that time I didn't know where I was going. I said I may go to Rajasthan. और उस समय मैं नहीं जान रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि शायद कुछ दिनों के बाद मैं राजस्थान चला जाऊं। Serve the Lord. If the Lord calls me there, यदि प्रभु मुझे बुलाए वहां पे उसकी सेवकाई करने के लिए तो मैं वहां चला जाऊंगा। I don't know. I've got no idea where I'm going to go. और उस समय मुझे जरा भी समझ नहीं थी कि मैं कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ या कहाँ जाना चाह रहा हूँ। And then, you know, like, I wanted to make it a little more difficult और उस समय मैं इनके लिए और थोड़ा सी चीजों को कठिन करना चाहता to था find out if she's really marrying me. Of course, I had the advantage of my hair was almost all gone, so और मैं यह जानना चाह रहा था कि क्या ये वास्तविकता में मुझसे विवाह करना चाह रही हैं, और उस समय जो मेरे पूरे बाल थे वो झड़ चुके थे that was one advantage. और यह मेरे लिए एक फायदे की बात थी। Certainly not marrying me for my looks.
तो इससे मैं इस बात के लिए निश्चित हो सकता था कि यह लड़की मेरे रूप रंग को देख करके मुझसे विवाह नहीं कर रही है। So then I thought I'd make it a little more difficult. और तब मैंने कहा कि मैं इसे थोड़ा सा और कठिन बनाता हूँ। I said, you know, I got false teeth. और मैंने उनसे कहा, आपको पता है कि जो मेरे दांत है वो सारे नकली दांत हैं। I wear dentures. और मैंने कहा कि मैं नकली दांत लगाता हूँ, अर्थात डेंचर्स लगाता हूँ। It wasn't true. It's one of those lies I said to find out if she's marrying me for my teeth or I wanted to be 100% for the Lord only. He's a spiritual person. I don't care whether he's got false teeth. I don't care if he's got no hair. I don't care if he goes to Rajasthan. I don't care if he has no money. और मैंने उनसे झूठ इसलिए कहा था क्योंकि मैं इस बात के लिए निश्चय होना चाहता था कि क्या वो मुझसे मेरे दांतों के वजह से विवाह कर रही हैं या ऐसे ही प्रभु के लिए विवाह करना चाह रही हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको कोई फर्क ना पड़े, चाहे मेरे दांत असली हो नकली हो, चाहे मेरे सिर में बाल हो ना हो, चाहे मैं सेवकाई के लिए राजस्थान जाऊं या कहीं भी चला जाऊं। Only he's devoted to Jesus. He's going to live for him. Full stop. और केवल इतना ही कि वह यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहे और उसके कार्य को करते रहे। पूर्ण विराम। Amazingly, she said yes. और आश्चर्यजनक रीति से इसने कहा हाँ। And she really believed I had false teeth. She was waiting for me to take it off sometime, and I said no. I was only testing you to see whether you really will. और इन्होंने सचमुच में विश्वास कर लिया था कि मेरे दांत नकली हैं और विवाह के बाद वो इंतजार करते हैं कि कभी मैं अपने नकली दांत को निकाल करके बाहर रखूंगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे दांत असली हैं। Choose me 100% because you see some spiritual values. और मैं इस बात के लिए निश्चय हो गया कि इसने मेरा चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसने मेरे अंदर कुछ आत्मिक बातों के मूल्य को देखा। And that is very necessary because, you know, I thought I would be working with Brother Bhakt Singh. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मुझे लगा था कि उस समय भाई भक्त सिंह के साथ मिलकर के सेवकाई करूंगा। And we were married by him. He was the only man of God, I have to say, that I have respected in this country. और हमारा जो विवाह था उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया गया था और भारत देश में वो एकमात्र प्रभु के ऐसे जन थे जिनका मैं सम्मान करता था। And so I could not think of ever working with anybody else because I never saw any other man who was so upright with money, so anointed. और इसलिए मैं किसी और व्यक्ति के साथ सेवकाई करने के विषय में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि उनसे ज्यादा पैसों को लेकर के खरा व्यक्ति और उनसे ज्यादा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति मैं कहीं नहीं पाता था। And what happened within 1.5 years after we got married? और क्या हुआ हमारे विवाह के 1.5 साल बाद ही? We just had a baby. It was Sanjay was born. और हमारा एक छोटा सा बेबी का जन्म हुआ और वो संजय था जो उसी समय पैदा हुआ था। I was thrown out of that church. और मुझे उस कलीसिया से फेंक दिया गया निकाल करके। By the jealousy of some of his co-workers who were older than me, who were jealous that Brother Bhakt Singh was training me up like a Timothy. और उनके कुछ सहकर्मियों के द्वारा, उन कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा जो मुझसे उम्र में बड़े थे और वे इस बात से मुझसे ईर्ष्या करते थे कि भाई भक्त सिंह मुझे तिमुथियुस के समान तैयार कर रहे हैं। So we were stranded. इसलिए हम एकदम से अवाक रह गए और हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। I did not know what I'm going to do. और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूंगा। And we wandered around, you know, going to some meetings here, some students meeting here, with no clarity. और हम इधर उधर भटकते रहे, यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के बीच में सेवकाई करते, वहां पे लोग विद्यार्थियों के बीच में सेवकाई करते। And she was so discouraged because we had a little baby, we didn't have much money, we didn't even have money to rent a house. और वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए क्योंकि उस समय हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, एक छोटा बच्चा था और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम एक किराए का घर ले पाते। We stayed in one corner, one room of my dad's house. और मेरे पिताजी के घर के एक कमरे के कोने में हम रहा करते थे। We never had a house of our own for 4 years. और हमारे विवाह के 4 वर्षों तक हमारे पास खुद के घर के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। I mean, it was just like I predicted. But God took us all through all that. और ये ठीक वैसा ही था जैसे मैंने अनुमान लगाया था और परमेश्वर ने हमें इन सारी चीजों से गुजारा For a purpose. एक विशेष उद्देश्य के लिए। Years later, when we went to the villages of Tamil Nadu,
where so many poor people, many of them when they get married, they also don't have money to rent a home. और अनेक वर्षों बाद जब हम तमिलनाडु के गांव-गांव में गए तो हमने वहां पे गरीब लोगों को देखा और वे लोग भी इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वे अपने किराए के लिए खुद के लिए घर ले पाते किराए में भी। Then I could say to them, I can be a forerunner for you. और तब मैं उनसे कह पाया कि मैं तुम्हारे आगे दौड़ने वाला एक व्यक्ति बन सकता हूं। I know what you're going through. और मैं समझ सकता हूं कि तुम किन चीजों से होकर के गुजर रहे हो, I've been through it myself. क्योंकि मैं खुद इन चीजों से होकर के गुजरा हूं। I had to live without a home after getting married for 4 years. और विवाह के 4 साल तक मैं खुद बिना घर के रहा हूं। So, God trains us in everything for a ministry in the future. और इसलिए परमेश्वर हमें भविष्य की सेवकाई को देखते हुए बहुत सारी चीजों के लिए हमें तैयार करता है। I say ministry does not come by Bible study or thinking clever thoughts. If you're not willing to go through, I said, Lord, I'm willing to go through anything. Anything. Anything you plan for me in anything, I'll go through it, but help me to fulfill your will. और सेवकाई ऐसे ही नहीं आ जाती। मैंने प्रभु से कहा था कि जिन भी चीजों की तूने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई, वो चीज कैसी भी क्यों ना रहे, मैं उन सारी चीजों से होकर के गुजरना चाहता हूं, बस आप मेरी सहायता करें। So that's the way he trained me. और इस रीति से परमेश्वर ने मेरी सहायता की उन चीजों के लिए तैयार होने में। And at that time I did not know. And I had a wife who stuck with me throughout, when she was considering marriage to me, she prayed and said, Lord, I can't preach. She had heard me preaching so powerfully, even when I was 24 years old. और मेरी पत्नी मुझे विवाह के पहले से ही जानती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रचार करते सुना था और उन्होंने प्रभु के सामने इस बात को रखा कि प्रभु जी, मैं तो इनके जैसा प्रचार नहीं कर सकती हूँ। And she said, I can't preach like him. And the Lord told her very clearly. और उसने प्रभु के सामने इस बात को कहा कि प्रभु जी, मैं अपने पति के जैसा प्रचार नहीं कर सकती हूँ। और प्रभु ने बड़ी ही स्पष्टता से उससे कहा, You don't have to preach. तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, Ever. कभी भी नहीं है। He is my servant. वह मेरा दास है, You just take care of him. तुम्हें केवल उसका ख्याल रखना है। And that's what she's done all these years. और इसी कार्य को तो उसने इन सारे वर्षों में किया है। And I'm very thankful that she's never once asked me to buy anything. When we had money, we bought. When we didn't have money, we never bought. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि इतने वर्षों में उसने कभी भी मुझसे कोई चीज खरीदने की जिद नहीं किया। जब हमारे पास पैसा था तब हमने उन चीजों को खरीदा, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने नहीं खरीदा। Never did we get into debt in our entire life, not even 1 rupee. और हम अपने वैवाहिक जीवन के इतने वर्षों में एक दिन के लिए भी हम कर्जे में नहीं पड़े, 1 रुपए का भी कर्ज हमने नहीं लिया। Did we have to borrow? We were in great need many times, but we'd say, okay, we live with what little we have. और कई बार हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी आवश्यकताएं रहती थी, परंतु मैंने कहा कि जो हमारे पास है हम उसी में रहेंगे, परंतु हम उधार नहीं लेंगे। And when we had children, we lived with what little we had. और जब हमारे बच्चे हो गए तो जो थोड़ी सी पूंजी हमारे पास थी हम उसी में जीवन जीते थे। And we're very, very thankful और हम परमेश्वर के प्रति बहुत ही ज्यादा धन्यवादी रहे for that. इन सारी चीजों के लिए। So, I say to young people, if you want a happy married life, make sure you go by spiritual values. और इसलिए मैं जवानों से कहना चाहूंगा, यदि आप एक खुशहाल वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो आप इस बात का निश्चय कर लें कि आप आत्मिक बातों के मूल्य को देखते हुए विवाह के विषय में सोच विचार करेंगे। That's most important. और यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। The other things are also important, but not as important as spiritual. If you love Jesus, और बाकी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। everything will be all right. And the other thing I wanted to see, और यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, when I was considering marriage, was जब मैं विवाह के विषय में सोच रहा था तब की बात। there are so many types of Christians, whereas God had shown me 4-5 years before I got married that the way of the cross. और उस समय भी बहुत प्रकार के मसीही लोग थे, परंतु मेरे विवाह के 4-5 साल पहले परमेश्वर ने मुझे क्रूस का मार्ग दर्शाया था, दिखाया था। Was the way God wanted me to walk all my life. और परमेश्वर चाहता था कि इसी क्रूस के मार्ग में मैं अपने जीवन भर आगे बढ़ता रहूं, चलता It रहूं। was in 1963, और यह 1963 की बात 5 है, years before I got married. मेरे विवाह के 5 साल पहले की बात है। So I wanted to know if this girl also was interested in the way of the cross. और इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या इस लड़की की भी क्रूस के मार्ग में चलने की दिलचस्पी है या नहीं है। So
I asked her what type of books she read, and I found it was the same type of books I read about being crucified with Christ. और इसलिए मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ती हैं, और जब मैंने जाना तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये वही प्रकार की पुस्तकें पढ़ती थी जिस प्रकार की पुस्तकें मैं पढ़ता था, अर्थात कि किस रीति से हम अपने आत्म के जीवन को क्रूस पे चढ़ा सकें। Taking up the cross and missionary biographies that challenged me, that challenged her. और जैसे कि मिशनरियों की जीवनी की पुस्तकें और प्रतिदिन क्रूस उठाने के विषय में जो पुस्तकें थी, उन जिन पुस्तकों ने मुझे चुनौती प्रदान की थी, उन पुस्तकों ने इन्हें भी चुनौती दी थी। So what I'm saying is, 50 years of married life, it's because we had a good foundation. और मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 50 वर्ष का जो हमारा वैवाहिक जीवन रहा, यह इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी जो नींव थी वो बहुत अच्छी थी। We started out with similar values, क्योंकि जो हमारी शुरुआत थी, हम दोनों के जो मूल्य थे वो एक समान थे। not seeking comfort or earthly gain, but और अर्थात यह कि सांसारिक सुख विलास और सांसारिक लाभ कमाना नहीं। God's provided us. I mean, you look at us today, we are almost living like kings. और परमेश्वर ने हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की, और आज अब हमें देखिए हम बिल्कुल राजाओं के समान जीवन जीते हैं। But I can tell you honestly, I never sought one of those things. परंतु मैं आपको ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा कि मैंने इनमें से किसी भी एक बात की कभी भी खोज नहीं किया था। Not one single thing. इनमें से किसी भी एक चीज की मैंने कभी भी खोज नहीं की थी। Even when my dad was dying in 1982, और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही थी 1982 में, and my son Sanjay was just in 7th standard or something, और जो मेरा बेटा संजय था उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था, he 12-13 years old, और उस समय वो 12-13 वर्ष की आयु का था। and my dad called me and said, और मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, when he was on his deathbed, और वो अपने मृत्यु की शैया पे पड़े हुए थे। he said, see, I can't understand why you have such a gift of preaching and you can travel and become a well-known preacher. You know, like you're traveling to all these international conferences, invited here and there. Why have you given it all up? और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुझे इतना अच्छा प्रचार का वरदान मिला है और तू देश विदेशों में प्रचार करता है, कॉन्फ्रेंसेस में प्रचार किया, परंतु अब तूने इन सारी चीजों को क्यों त्याग दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी ने मुझसे एक ऐसा प्रश्न किया। Why have you given it all up and sitting with 10 people in this house? और उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों तूने देश विदेश में घूम घूम के प्रचार करना छोड़ दिया, और क्यों तू अपने घर में 10 लोगों को लेकर के बैठा है, When you could be traveling the world. जबकि तू इस समय पूरे देश विदेश में एक बड़ा प्रचारक बन सकता है, घूम घूम के प्रचार कर सकता है। You can be like Billy Graham, he said to me. और उन्होंने कहा तू बिली ग्राहम के समान बन सकता है। I said, Dad, I am not called to be like Billy Graham. I will not use my gift to get a name or fame or money for myself. और मैंने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मुझे बिली ग्राहम होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, और मैं कभी भी अपने इन वरदानों का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैं अपने लिए नाम, शोहरत, पदवी और पैसा कमाऊं। God has called me to build the church. परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का निर्माण करने के लिए बुलाया है। If it's 10 people, 10 people, fine. यदि 10 लोग रहें तो 10 लोग रहें, ठीक है, कोई बात नहीं। But Jesus came to build the church, and I will spend my life building the church. I will not use my gift like other preachers to go around traveling to conferences and fame and honor and money. जैसे यीशु मसीह संसार में कलीसिया का निर्माण करने के लिए, वैसे ही मैं इस संसार में रहते हुए कलीसिया का निर्माण करूंगा, और मैं अपने वरदानों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा अपने लिए नाम और शोहरत कमाने के लिए, जैसे कि ये प्रचारक लोग देश विदेश में घूमते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में प्रचार करते हुए अपने लिए एक बड़ा नाम कमाते हैं। He couldn't understand it. और उस समय मेरे पिताजी इन बातों को नहीं समझ पाए। And those days when he died, we were a small group. और जब उनकी मृत्यु हुई तब हम एक छोटे से समूह के ही लोग हुआ करते थे। The other thing he said is, see, you got 4 children. और दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही वह यह थी कि देखो तुम्हारे 4 बच्चे हैं, It's very expensive to educate them in college. और बहुत ही महंगा पड़ेगा इन्हें कॉलेज की पढ़ाई करवाना। How are you going to do? You don't take any money from anybody. तो तू कैसे इनकी पढ़ाई पूरी करवा पाए, क्योंकि तू किसी से कभी पैसा लेता ही नहीं है। How are you going to live with? And I said, Dad, तो तू किस रीति से जीवन जिएगा? मेरे पिताजी ने यह प्रश्न पूछा, और मैंने उनसे कहा, पिताजी, if I don't seek God's kingdom first, even this 30 rupees that I pay, those days school fees in Clarence School was 30 rupees per month. Even that school fees I will not be able to pay.
और मैंने कहा, पिताजी, यदि मैं परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज ना करूं तो यह जो 30 रुपए फीस जो मैं अपने बच्चों की जमा करता हूं, उन दिनों में 30 रुपए फीस हुआ करती थी क्लैरेंस स्कूल की, मैं उस फीस को भी जमा करने के योग्य नहीं रहूंगा। But if I seek God's kingdom first, God will take care of them. I mean, God has given me children, He'll help. और मैंने कहा, यदि मैं परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करूंगा तो परमेश्वर मेरा और मेरे बच्चों सबका ख्याल रखेगा। And my dad never lived to see it, but और मेरे पिताजी उन चीजों को देखने के लिए कभी जीवित नहीं रह पाए। God gave scholarships to all my children to study computer science. परंतु परमेश्वर ने मेरे सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्ति दी, ताकि वे कंप्यूटर साइंस में अपना स्नातक कर पाएं। In the United States, और अमेरिका देश में, full scholarship. और अमेरिका देश में उन्हें पूरी रीति से स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। So, and then through the years, how God has opened so many doors and planted churches in so many places that I don't know whether my dad could see from heaven. और उसके बाद अनेक वर्षों में परमेश्वर दरवाजे खोलता चला गया और अनेक गांव में, अनेक जगहों में अनेक कलीसियां स्थापित होते चले गई। और मुझे नहीं पता क्या मेरे पिताजी स्वर्ग से इन बातों को देख पा रहे हैं कि नहीं। But if he can see, he will look at me and say, "Son, you were right." परंतु यदि वे स्वर्ग से देख पाते तो मेरे पिताजी मुझे देख करके कहते कि बेटा, तूने सही किया, तूने सही निर्णय लिया, तू सही था। The way you chose was right. और जो चुनाव तूने किया वो बिल्कुल सही चुनाव था। So that's the other thing I want to say. और यही एक और बात है जिसे मैं आपसे कहना You know, चाहूंगा। when God shows you something, जब परमेश्वर आपको कुछ बातों को दिखाता है, the future may look very bleak in front of you. तो हो सकता है कि बहुत धुंधला सा भविष्य आपको दिखाई पड़े। But if you're listening to God, परंतु यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं seek the fullness of the Holy Spirit. और That's पवित्र आत्मा की भरपूरी की खोज कर रहे for हैं। help Annie too. When we were so discouraged one day, she went to pray with one sister. और एक दिन जब हम बहुत ही ज्यादा निराश थे तो एनी जो थी वो एक बहन के साथ प्रार्थना करने के लिए गई। And while she was in prayer and saying, "Lord, why am I so discouraged? I used to be so devoted to you when I was single." और वो कहने लगी कि प्रभु जी, मैं इतनी निराश क्यों हूं, परंतु जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मैं कितने ज्यादा खुशी और हर्ष से भरी रहती थी। And here I am struggling, and I want to. And there was so much complaints and bitterness in her heart about the situations. और यहाँ पे मैं हूं और सब चीजों की शिकायत कर रही हूं। और उसने कहा कि अब मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट है और इतनी सारी चीजों की चिंताएं हैं। Not against me, but against all the circumstances of our life. और उसकी जो कड़वाहट थी वो मेरे विरोध में नहीं थी हृदय में, परंतु जो जीवन की परिस्थिति थी उसके प्रति उसके अंदर कड़वाहट थी। And she confessed it all, and और उसने इन सारी बातों का परमेश्वर के सामने अंगीकार किया। God filled her with the Holy Spirit, and suddenly she, who was so much against speaking in tongues, और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा और वह एनी जो पवित्र आत्मा से अन्य भाषा के बहुत विरोध हुआ करती थी। she says, suddenly और उसने कहा अचानक से she began to speak in an unknown language, कि वह एक अनजानी भाषा में बात करने लगी। and she couldn't stop. She did try to go back to English, but she said she preferred to continue flowing out in an unknown tongue. और उसने बहुत कोशिश किया कि फिर से अंग्रेजी भाषा में प्रार्थना कर सके, परंतु वह उसे रोक न सकी। इसलिए उसने इस बात का चुनाव किया कि वह अन्य भाषा में आगे जारी रखेगी। And she was changed. और उस दिन से वह परिवर्तित हो गई। And I was still arguing against these things in my mind. It took me 6 years later. और मैं अभी भी इन चीजों को लेकर के अपने मन में संघर्ष कर रहा था और मुझे इसमें से निकलने में 6 साल और लगे, Before God filled me with the Holy Spirit and जब तक कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरा gave me the same gift. और मुझे वही वरदान नहीं दिया। But I know that is what started CFC. और मैं जानता हूँ यही वह बात थी जिसने CFC की शुरुआत किया था। The first church was started through the baptism in the Holy Spirit. और जो पहली कलीसिया थी वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आरंभ हुई थी। And CFC also was started when we were both baptized in the Holy Spirit. और CFC की भी शुरुआत तब हुई जब हम दोनों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिए थे। And Ian also was baptized in the Spirit and we came together. और इयन भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा चुका था और हम सब एक साथ मिले। And it was through that, and that is why when I look around at so many Christians today, और यह इसी के द्वारा था। और जब आज मैं चारों तरफ बहुत सारे मसीहियों को देखता हूँ I feel, boy, what is
missing in their life is the baptism of the Holy Spirit. और मैं कहता हूं कि वह कौन सी बात है, वह बात जो इनके जीवन में जो कमी रह गई है वह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। They got all the doctrine, they understand everything, they इनके पास सारे सिद्धांत हैं, ये हर एक चीजों को समझ पाते हैं got clear teaching and this, और इनके पास अच्छी शिक्षाएं हैं, स्पष्ट शिक्षाएं हैं। that, the other. Everything is there. The fire is missing. इनके पास हर एक प्रकार की चीजें हैं, परंतु जो एकमात्र कमी वह यह है कि इनके पास अग्नि नहीं है। It's like fitting all the electric fittings, fan, light, AC. Only electricity is not there. ये ठीक वैसा ही जैसे आपने पंखा लगा लिया, लाइट लगा लिया, एसी लगा लिया, परंतु बस आपके घर में बिजली नहीं है। I feel like that about many people in CFC. और मैं सीएफसी में बैठे अनेक लोगों के विषय में ऐसा ही महसूस करता हूँ। How much understanding we have. कितनी ज्यादा समझ हमारे पास है। It's like the electrical fittings. ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ महंगे महंगे बिजली के उपकरण हैं, All types of gadgets. हमारे पास हर प्रकार के उपकरण हैं। Or what about the electricity? What about the power of the Holy Spirit? परंतु बिजली के विषय में क्या, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में क्या? She was desperate, I was desperate for the power of the Holy Spirit. And that's how God met with us. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, हम दोनों ही आतुर थे और इसी रीति से परमेश्वर हमसे मुलाकात किया। I want to say to you that that is what has helped us even in our married life. और मैं आपसे कहना चाहूंगा यही वह बात है जिसने हमारे वैवाहिक जीवन में भी हमारी सहायता की है। So I want to encourage all of you to go that way. और मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इसी मार्ग में, इसी पथ में चलते रहें। And let your life be devoted to Jesus and to build His church. और होने दीजिए कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसकी कलीसिया के लिए समर्पित हो सके। We are very happy today. I want to say that और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। I believe that we have experienced in our home और मैं विश्वास करता हूं कि हमने अपने घरों में इसे अनुभव किया है। a foretaste of heaven. स्वर्ग के एक पूर्व स्वाद को हमने अपने घर में अनुभव किया है। I mean, we could, when we move into heaven from here, it's not going to be much different. अर्थात जब हम यहाँ से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो वहां कुछ खासा अंतर नहीं महसूस होगा। We're going to be happy there like we are happy here. और जैसे हम खुश यहाँ हैं वैसे ही खुश हम वहां स्वर्ग में भी रहेंगे। And I pray it'll be like that for all of you. और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बात आप में से हर एक के लिए लागू होगी। Thank you so much for taking so much pains. We've been very reluctant to go through these celebrations. और धन्यवाद हो आपका कि आपने इतना कष्ट उठा करके इन सारे आयोजन को किया, और हम तो बहुत ही हिचकिचा रहे थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। But then I was telling Annie, और तब मैं एनी से कह रहा था, if our children, supposing my 4 boys said, Dad, we want to celebrate your anniversary, we would say no. और यदि मेरे 4 बेटे आकर कहते कि पिताजी हम आपके विवाह की वर्षगांठ को मनाना चाहेंगे, तो क्या मैं उनको मना करता? We wouldn't say no. तो हम उनको मना नहीं करते। And I said, these are our children. और मैंने कहा कि ये भी तो हमारे बच्चे ही हैं, These are our sons and daughters God's given us. और यह हमारे बेटे और बेटियों के समान है जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है। If they want to celebrate, I won't say no. और यदि वे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो मैं इन्हें मना नहीं करूंगा। So thank you very much. इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।